جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں ہوں محمد سعید خان صدوزئی اور آپ میرے یوٹیوب چینل لیگل کنسلٹنسی ود سعید خان صدوزئی. آج ہمارے مہمان ہیں لالا عزت خان. آپ اکثر انہیں دیکھتے ہوں گے، یہ بہت پیارے تبصرے کرتے ہیں اور ٹی وی اور مختلف یوٹیوب پر ہوتے ہیں. تو آج یہ ہمارے مہمان ہیں اور ان کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آج یہ ہمارے پروگرام میں آئے. لالا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. لالا جی کیسے ہیں آپ؟ بہت مہربانی سر. آج جو ہے آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں کاکڑ صاحب، جی سر. یہ کل پرسوں 2 دن غالباً ہوئے ہیں، یہ لانگ یونیورسٹی میں گیا، لانگ یونیورسٹی میں خطاب کرنے کے لیے. تو ادھر طلبہ نے کچھ سوالات اٹھا دیے، جی سر. جس سے ہم نے یہ دیکھا ٹی وی میں خبروں میں کہ پریشان، رات کو پولیس ادھر پہنچی ہوئی تھی. تو کیا معاملہ تھا، کیا لینے گئے تھے ادھر یہ؟ بہت شکریہ سعید صدوزئی صاحب، آپ کے میں انتہائی مشکور اور مشکور. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کرسی دینا، عزت اور ذلت دینے کا مالک، دولت اور موت کا مالک اللہ. اب نگران صاحب کو اللہ پاک نے اگر یہ کرسی دے ہی دیا، میں آپ کو الفن کہہ رہا ہوں، میرا 64 سال عمر ہے اور سیاست میں تقریباً کوئی 45 سال سے انوالو ہوں، لیکن اس نگران وزیر اعظم کو میں کم از کم نہیں جانتا تھا. اچھا، جانتا نہیں تھا، کیونکہ ٹھیک ہے اسمبلی کا ممبر تھا تو اس ملک میں ہمارا کم از کم 1250 کے لگ بھگ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی اور سینٹ ایسے ہے. تو یہ بھی ہوتا. اب اللہ نے اس کو نگران بنا دیا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ نگران کا اس ملک کا بچہ یہ جانتے کہ نگران صاحب کا ڈیوٹی اتنا ہی ہے کہ آپ نے صرف اور صرف، کیونکہ ایک قانونی میٹر ہے کہ جب ایک منتخب گورنمنٹ چلا جاتے اور دوسرا آتے تو درمیان میں ایک ایسے سیٹ اپ ہونا چاہیے 90 دن کے لیے ان کے وزیر اعظم، تاکہ دنیا کا خطے میں کوئی اس کے اوپر انگلی نہ اٹھائے. وہ اتنے پڑھے لکھے، اتنے مطلب ہے اس کا پرسنل زندگی اتنا بے داغ ہو، اتنا شفاف ہو، اتنا ستھرا ہو. کیونکہ یہ جو الیکشن اگر کہیں ہوگا، مجھے امید نزدیک نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمارا کئی ممالک کے مبصرین آئے گا، میڈیا آئے گا، دنیا آئے گا، انجوز آئے گا، وہ دیکھے گا کہ بھائی اس میں انصاف کتنا ہوا اور یہ کس قسم کے مطلب ہے الیکشن ہوا. شفاف ہیں. اچھا، اب یہ جو میرا صاحب ہے یہ ایسے غیر ضروری پنگے لے رہے کہ جیسے آپ وکیل ہے اور آپ کے پاس میں مریض لے آؤ کہ بھائی اس کو جناب 104 کا بخار ہے، اس کو دوائی دے دو، تو آپ خراب ہی کریں گے نا. خراب ہی ہو گیا. ٹھیک ہے، اگر کوئی لیگل میٹر کا کیس دے دو تو پھر تو ٹھیک ہے. اچھا، یا میں کام مزدور آدمی ہوں، مجھے آپ قانون کا کتاب دے رہے کہ کل یہ میرا کلائنٹ کا مقدمہ لڑ، تو میں خراب ہی کروں گا نا. نگران صاحب جو ہے اس کو چاہیے کہ کوئی سبزی منڈی کا دورہ کر لے، یہ کوئی یوٹیلیٹی اسٹور کا دورہ کر لے، یہ کسی تانے کا دورہ کر لے، کسی کورٹ کچہری کا دورہ کر لے، کسی غریبوں کا، مزدوروں کا کسی چوک میں جا کے دیکھ لے کہ ان پر کیا گزرتے. ٹھیک ہے، اور یہ اس پر زور دے کہ اگر مجھے آپ نے اس کرسی پر بٹھائے تو میرے اوپر 25 کروڑ پاکستان کا عوام اور تمام عالمی دنیا کے نظریں لگے. بھائی جس ڈیوٹی کے لیے مجھے آپ نے بٹھائے مجھ سے وہ ڈیوٹی لو. الیکشن کا ماحول بنا دے، یہ جناب ادھر سے وہ الیکشن کمیشن کچھ خط لکھے، یہ جناب باقی اداروں کو لکھے کہ بھائی میرا ساتھ تعاون کرو، کیونکہ میں انصاف دینا آیا ہوں اور وہ انصاف لوگوں کو نظر آنا چاہیے، بچے کو. آگے آپ کا سوال آ گیا کہ گیا تھا لمس یونیورسٹی. اس نے سمجھے کہ وہ کسی نے کہا کہ پرائے شادی میں عبداللہ دیوانہ، اس نے کہا پرائے شادی عبداللہ دیوانہ، تو بھی لمس یونیورسٹی چلا جا، لوگ میرے گلے میں ہار ڈالے گا، لوگ واہ واہ کرے گا، تاڑی بجائے گا، تاریخ میں آئے گا کہ میں بھی لمس یونیورسٹی گیا. وہاں جو لمس میں پڑھتے ہیں نا، وہ آنے والا ملک اور قوم اور پاکستان کا مستقبل ہے. ان میں سے جج نے بننے، ان میں سے جرنیلوں نے بننے، ان میں سے سیاسی افسروں نے بننے، اور وہ جناب ماں باپ اس پہ بڑا خرچ، وہ بڑے پڑھے لکھے بچے تھے. انہوں نے جو سوال کیا 100% صحیح سوال کیا. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا پاس لینے کیا ہے، یعنی وہ سمجھتے کہ آپ کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے.
ना में कोई फंड दे सकते, ना आप हमारा कोई इजाफा कर सकते, ना नुकसान कर सकते। दूसरों ने फिर ये भी कहा कि मुझे तो कम अज़ कम शर्म आता है कि निगरान वज़ीर आज़म के सामने ना बैठा। ठीक हो गया। मेरे वज़ीर आज़म साहब को तो वहाँ पता लग गया कि इसने कोई 3-4 बोतल पानी पी है। वो पी रहा था ना, पी रहा था बाहर, क्योंकि बोतलें जवाब नहीं था। जवाब नहीं था अच्छा, उसके पास। अब जनाब बात ये कि ये साहब और क्या करते, कभी मीटिंग बुलाते कि जनाब 200% जब इसने गैस महंगा किया, ये किसी दुनिया में किसी जगह पर ये एडजस्टेबल नहीं है, ये निगरान गवर्नमेंट का काम नहीं है। ये जनाब बेशक एडजस्ट छोड़ दे, ये मुंतखब मेंबरों का काम है, ताकि कल हम उनसे पूछ सके कि भाई आप तो आए हमारा सहूलत के लिए, अब तुमने 200% गैस क्यों महंगा किया। इसके दौरान में बिजली महंगा हो गया, इसका मैंडेट नहीं है। इसके दौरान में जनाब बिल्कुल जो है ना, अभी ये PIA को बेच रहे, इसका मैंडेट नहीं है। सरकारी मुलाजिम इसके दौर में लाहौर के ऊपर उसने डंडे खाए, जेल खाए, वहाँ गया, ये वहाँ पेंशन को छेड़छाड़ करते। मैं एक लेबर लीडर हूँ, मैंने 40 साल लेबर का काम किया, नेशनल लेबर फेडरेशन से मेरा ताल्लुक़ है, जो 9 लाख लोग हो हमारा साथ है, और इसको पता नहीं है कि पूरा पाकिस्तान में 40 लाख सरकारी मुलाजिम है, इसके पास कोई इख्तियार नहीं है उसके पेंशन में कमी करने का या उसको निकालने का या बहाल करने का। ये गैर कानूनी काम है। लाला जी, ये भी सुना है कि इन्होंने जो है ना ये पेंशन वगैरह ख़त्म करके जो स्कूल हैं, खासकर KP पंजाब के, इन्होंने पिछले दिनों ये चल रहा था, इन्होंने लेडीज़ टीचर को और उस असातिज़ा अकराम को जो हमारे मेहमान बनाते हैं, जो हमारे बड़े बड़े लोग पैदा करते हैं, उन उस्तादों को इन्होंने मारा पीटा, जेलों में बंद किया और उनकी पेंशनें बंद कर दी हैं। और एक ये भी है कि पहली जमात से लेकर नोटिफिकेशन पंजाब में हो गया कि पहली से लेकर 5वीं तक 3000 रुपया पर बच्चे के हिसाब से फीस होगी, और उससे आगे 5वीं से लेकर 8वीं 10वीं तक 5000 रुपये हो गए। एक गरीब बच्चा है, एक गरीब आदमी है, मजदूर, उसके पास 3 4 5 बच्चे, वो स्कूल में पहले मुफ्त तलीम लेते थे, किताबें मिलती हैं बहुत सारी। अब क्या करेंगे, ये तलीम का कत्लेआम नहीं हो रहा, ये बच्चे गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे कैसे, इस पे आप क्या कहेंगे? कौम से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरा अपना एक अंदाज़ है बात करने का। हमारा इलाके में जब दुश्मनी होते हैं ना, तो हम अपना दुश्मन को कहते हैं यार अगर आपने मुझे मारना ही है ना तो आपको कुल इजाज़त है, लेकिन तेरा मेहरबानी है ज़रा सामने से आओ ताकि तेरा गोली सीने पर खाऊं, चुप के वार न करना ताकि कल मेरा बेइज्जती ना हो। इस मौके पर मैं कह रहा हूँ कि अगर फौज ने इसी मुसीबत को हमारा सिर पे रखना है और इसी से हमें जलील करना है, तो खुद आ जाए 3-4-5 साल के लिए टेक ओवर कर ले। हमारा फौज है, हम उसको सलाम करते हैं। पहले भी हमने 11 साल जनरल ज़िया को सलाम किया, मुशर्रफ को भी किया, ये भी हमारा भाई है, अच्छे लोग हैं। मुझे आप ये बता दें, ये जितने बातें आप कर रहे हैं इस पे हम लाखों प्रोग्राम कर सकते हैं। न स्कूल का इसका मैंडेट है, ये न नवा स्कूल बना सकते हैं, न स्कूल को खत प्राइवेट कर सकते हैं, न ये नवा अदालत बना सकते हैं, न किसी जज को लगा सकते हैं, न निकाल सकते हैं। इसका मैं फिर उधर आता हूँ, इसका ऐसे है कि आपकी गाड़ी पार्क में खड़ा है और आप मुझे चाबी दे दे कि खान साहब मैंने नमाज पढ़ने, या मैं किसी दोस्तों के पास जो आपने 3 घंटे मेरे गाड़ी का निगरानी करने ताकि इसको चोर चकों से बचाओ। इसने हमें 3 महीने के लिए चोर चकों से बचाने, और हमारा उन जो मैंडेट वाला लोग जब आएगा उसी तरह उनकी चाबी हवाला करने से ले लो, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। और याद रखो, इसको भी मैं कह रहा हूँ, पानी का रास्ता और कानून का रास्ता और तूफान का रास्ता यहाँ तक किसी ने रोका नहीं है। नहीं रोकता, बिल्कुल रोक ही कोई नहीं सकता, ये कोई रोक नहीं सकते, या वक्ती तो रोक सकते, या अपना रास्ता बनाएगा। पानी के लिए जितना मर्जी बंद बना लो, हमारा हर साल बजट जो है ना आधा बहुत सैलाब का आते, ये बंद बनाते अगला साल पानी ले जाते। बनते नहीं है, बनते बन जो लाला जी हवा में बनते। इस वक्त आपका कानून अगर इसी तरह है या नज़र नहीं आता है, या उसका हाथ पाँव किसी ने बांधा हुआ है, या मिसाल के हमारा जज बिक जाते या हमारा जज डर जाते, इसका ये मतलब नहीं है कि सारा ज़माना ये लाकानूनियत रहेगा। इस मुल्क में 25 करोड़ आवाम रहते हैं, ये कानून एक दिन अपना मुकाम पे आएगा। और मुझे एक और बात बताए, अगर ये सूरत हाल है कि एक बंदा हवा में आ रहा है, अब इस मुल्क में उसने पाँव ही नहीं रखे, है भी मुजरिम, और उसके लिए लोग कह रहे हैं कि भाई मीनार पाकिस्तान में आओ, लाखों लोग हम आपके लिए इकट्ठा कर दे, तू खिताब करना।
दूसरा बंदा जिसके ऊपर जुर्म साबित ही नहीं है वो जेल में बैठा हुआ है, और आप जैसे कदावर वकील और बड़े बड़े देखते और रोज जाते हैं और अदर कानून की किताबें खोल के और पढ़ के और दिमाग का के और सिर का के, और एक इतना छोटा सा जज कि मैं कहता हूँ वो जिसने जनाब उसको सजा दिया वो दिलावर, वो मेरा लेवल का वकालत भी नहीं कर सकते, इतने छोटा मोटा वकील मैं भी हूँ, लेकिन उसको अगला उसको पता था कि मैंने सिर्फ सह नहीं करने, लाला जी 10 मिनट के अंदर सुनो सजा में भी बढ़ा देते। जब जज लिखते हैं ना वो डिक्टेशन देते, वो कोई 10 सफ़े 15 सफ़े 20 सफ़े होते, लाला साहब वो लाला फिर जी टैपिंग सुनो एक जी, मिनट उसका फिर टैपिंग होते, यही है, ऐसे ही वो कोई 2-4 घंटे लेते, फिर 15 मिनट में हो गया सुनो सब कुछ। फिर उसको अगला जज पढ़ते कि भाई जो मेरा स्टेनो है या मेरा जो बंदा है कोई जो भी है गलती तो नहीं किया। उसने कोई गलती तो नहीं की, जो अंग्रेजी मैंने बताया इसने वही लिखे, वो कम अज कम उसमें टाइम देते 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे। ये दुनिया का पहला फैसला था, अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन इज़्ज़त खान का दिल मरने तक नहीं मानते कि ये फैसला 2 दिन पहले ही लिखा था, उस गरीब ने सिर्फ साइन करके, क्योंकि आगे उसका एयरपोर्ट में लाला जी आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम रहा। नाजरीन इंशाल्लाह ताला बस next एक time- लफ्ज़ ये बोलता हूँ जी जी जो वो कहते सुबह कबूल हो व शाम को गारा है तू भूल मत कहो। निगरान साहब मैं आपको कसूरवार नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि वो कुर्सी है इतना जोरावर, क्योंकि वहाँ बाथरूम भी सोने का है, वो जो वज़ीर आज़म का बाथरूम है वो सोने का है, वो जो दरवाजे के हैंडल खोलते वो भी सोने का है। तो जो सोने के ऊपर आदमी बैठा हो ना तो उसका लेवल कुदरती ऊपर ही जाते। लेकिन मेहरबानी करें इस कौम पे रहम कर ले, और तू बड़ा बलोचिस्तान की इज़्ज़तदार सूबे से तेरा ताल्लुक़ है, बड़े इज़्ज़तदार कबीले से तेरा ताल्लुक़ है, काकड़ बहुत बड़े इज़्ज़तदार लोग हैं, मेहरबानी करें इस मुल्क और कौम और अपनी इज़्ज़त को बचाए, वो काम करो जो तुम्हारे इख्तियार और मैंडेट है। नाजरीन आज हमारे साथ थे इज़्ज़त खान साहब, लाला के नाम से बहुत मशहूर हैं। आज का प्रोग्राम बहुत माशाल्लाह अच्छा रहा, आप लोगों की इंटरेस्टिंग के लिए लाला के हम बहुत मशहूर हैं, और आज हमें इजाज़त दें, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।